نظر بد موت تک لے جاتی ہے۔ نظر بد اور حسد مال اولاد رزق دولت سب کچھ کھا جاتی ہے۔ نظر بد کا شکار یہ صورتیں پڑھیں، نظر بد جاتی رہے گی اور نظر بد سے ہمیشہ کے لیے بچا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو ذریعہ عمل ہے، جسے خالص شیطانی عمل قرار دیا جاتا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدد حاصل کی گئی ہو، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو اسے اس کے اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی سے اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کے بنا پر جادوگر کچھ حیران اور شرکی امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ والناس، ان کو موزتین کہتے ہیں، وہی کی گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروہ کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت ترین سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن موزتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کے منہ میں سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت مقرر ہی پر موت آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے ذریعے سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روح شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تصدیق کریں۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامت ہوتی ہے، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: نمبر 1 ہوا میں اڑنا، نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا، نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا۔ نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا یا آواز دینا
झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़ कर हिलाया है, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना, खौफजदा होकर भागना, बरना मनाजिर देखना या किसी को जिनसे ज्यादती करते हुए महसूस करना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में इंसानी गलाजत देखना, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर देखना, जागने के बाद खूब भूल जाना, सोते में देखने कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसका महसूस करना कि कुछ खाया है। ईसाइयों के गिरज सलाब के निशान और पादरी वगैरह या किसी मखसूस दिन के इशार देखना। जागते हुए जादू की अलामत ये हैं: जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, और अगर गलती हो जाए तो ना मानना, और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा हो जाना, इस तरह महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई अनजाना सा खौफ कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वस्फ से आना कि आज मर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने का दिल करना, दम के दरमियान शदीद नींद आना, अमूमन पेट और चेहरे का फूला हुआ महसूस होना, बाजू टांग वगैरह का सख्ती से अकड़ना, कंधे और सर में शदीद बोझ महसूस करना, मैदे में दर्द महसूस करना, जैसे कोई चीज़ गेंद की शक्ल में घूम रही हो, गैर इरादी तौर पर तेज़ी से हरकत करना, जिस्म का गर्म होना, दम के बाद यूं लगना कि किसी ने सारे जिस्म पर डंडे से पिटाई की है, या अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और खुशगवार ना लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ें दे रहा है, जिसमें कट लग जाना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना और कपड़ों का कटना, आंखों के सामने धागे, बाल, सांप वगैरह आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज़्यादा गैस होना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना, या किसी एक शख्स के ना चाहते हुए भी बेजा गुलामी करना, रिश्तों का आना लेकिन बिला वजह बाद में टूट जाना, अय्याम में बेकैदगी होना, ऐसा महसूस होना कि किसी ने सोई चबोई है, उसकी तकलीफ का महसूस करना, या यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नुकीली चीज़ दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हूँ, हर एक की राय मुख्तलिफ और डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर ना हो, तो ये भी जादू की वैध सी निशानी है। कभी मरीज में इन अलामत में से कोई अलामत भी नहीं पाई जाती है और यह शाज़ व नाज़िर ही होता है। ऐसे शख्स की अलामत दम के दरमियान ज़्यादा वाज़ी होती हैं। दम के दरमियान की अलामत ये हैं: एक दम करने वाले के चेहरे के बदनुमा देखना या उससे खौफ खाना या मजाक खेज सूरत देखना, दम के दरमियान जिसमें चींटियां चलती हुई जिस्म पर महसूस करना, शिद्दत से रोने या कह के लगाने को दिल करना, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने को दिल करना, दम के दरमियान शदीद नींद का आना। अगर आप में इनमें से कोई भी अलामत पाई जाती है तो आप हर वक्त ज़हरी और बातनी तहारत का ख़ास ख्याल रखें। कुरान मजीद की तिलावत, मसनून अज़कार और दुआओं का एहतमाम करें, ख़ासूसन आयातुल कुर्सी, सूरत अल फलक, सूरत वन नास शाम को कम अज़ कम 3-3 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। दिन भर कसरत से पढ़ें तो यह मज़ीद बेहतर होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हुआ। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। उसके पास चंद यहूदी आए, आकर कहने लगे कि ऐ लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से दूर रखें, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए अब हम तुम्हारे पास आए हैं तो हम तुम कुछ पैसे और अशरफिया ले लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दो। यह सुनकर जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम कर दूंगा। इस ज़माने में यहूदी लड़का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। उन यहूदी ने उस लड़के को बहला फिसला कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गिरहें बांधी और उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये होता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते उसके बारे में ख्याल आता है कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था।
नबूवत पर उसकी वजह से कभी ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात भी कही हो या कुरान की कोई आयत गलत पढ़ी हो। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने दुआ की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई और आप सो गए। सोकर उठे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगे, ऐ आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हजरत आयशा ने पूछा, कौन सी दुआ या रसूलल्लाह? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मोहम्मद को क्या हुआ है? एक ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस पर जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, बाल जंगल के कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हुए हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे ने जवाब दिया कि इस कुएं से पानी निकाल कर वो टुकड़ा निकाला जाए तो उन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को जंगल की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। बहुत सारे सहाबा कराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई गई थी उस जगह से कंघी और बाल निकाल कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, यह सूरत फलक और सूरत वन्नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गिरह खोलते जाएं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि 11 गिरें खोली गईं और फिर आपने ऐसा महसूस किया जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। उन सब के बाद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जादू का इकरार किया कि हाँ, मैंने जादू किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ कर दिया और कोई सज़ा ना दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हजूर भी एक इंसान थे, लेकिन उसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई असर ना पड़ा। नादरीन, नज़र बद क्या है? नज़र बद भी हकीकत है, जादू की तरह लग जाती है। और एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 10 में से 7 अमवात नज़र बद की वजह से होंगी। और एक साहबी नंगे बदन नहा रहे थे तो दूसरे साहबी ने उनकी तारीफ की, उनकी तरफ खूब देखा तो उसी वक्त उनके पीछे उनकी मौत हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें नज़र बद लगी है। तो नज़र बद भी हकीकत है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इस हवाले से आयत है, कह दीजिए कि मोमिन मर्दों से कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें और शर्मगाह की हिफाजत करें। नज़रों को झुकाने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जब आपको कोई गलत चीज़ नज़र आए तो नज़र झुकाएं या औरत पर नज़र बढ़े तो नज़र झुकाएं, लेकिन उलमा ये भी कहते हैं कि नज़र झुकाने से मतलब ये है कि जब आप किसी पर ज़्यादा नज़र डालें और माशाल्लाह ना कहें तो फिर वो हासद बन जाता है और हासद से पनाह मांगी गई है। इसलिए जब आपको कोई खूबसूरत चीज़ या इंसान नज़र आए तब भी अपनी नज़रों को झुका लो। अगर किसी पे ज़्यादा नज़र डाल रहे हो और उसकी नेमत पे और तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही हो कि मेरे पास भी ये नेमत हो, तो फिर अपनी नज़रों को झुका लेना चाहिए। आप देखिए, बहुत से सवालात आते हैं कि मुझ पे काला जादू हो गया है। पाकिस्तान में तो ये मजाक ही बन गया है कि इस पे काला जादू है, और आगे से बताने वाले भी यही चाहते हैं कि इस पे काला जादू है। ये चीज़ भी समझ लें कि काला जादू होना कोई आसान बात नहीं है। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि बंदे पे काला जादू हो गया, और हर बंदे काले जादू के असर में नहीं आता है। इसके लिए आपको काले जादू की कुछ अलामात बताते हैं जो उलमा कराम ने बताई है कि ज़रूरत से ज़्यादा जमाइयाँ आना। आप बहुत ज़्यादा सोए हुए हैं फिर भी जमाइयाँ आ रही हैं, या बैठे बैठे थक जाते हैं, गलबा तारी हो जाता है और हर वक्त सुस्ती का शिकार रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बीमार होना, सर में शदीद दर्द रहना, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन नज़र बद के आसार भी होते हैं। यह नज़र बद के कुछ अलामात हैं। आप बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें पता है कि किस की नज़र लगी हो तो फिर उसको कहें कि वज़ू करे और उसके वज़ू के पानी से तुम नहाओ दूसरे पानी में मिक्स करके। अगर नहीं पता कि किसकी नज़र लगी है तो फिर अपने ही वज़ू के पानी से नहाओ, और उसका बेहतरीन इलाज तो अज़कार है। सूरत फलक और सूरत नास, ये अल्लाह ताला ने 11 आयात नाज़िल फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें मौज़तैन कहते हैं, यानी जुड़ी हुई चीज़ें। आप बात करते हैं काला जादू क्या है, काला जादू की क्या अलामात हैं। पहली चीज़, काला जादू बहुत ही मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल से होता है, आसान चीज़ नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिन्नात को और जादूगर को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप चांस ना दें। पहली चीज़ ये है कि वो तब होता है जब इंसान खुद मौका देता है। जब इंसान का ईमान बहुत कमज़ोर होता है
تو شیاطین کو بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا ایسی صورت میں بھی شیاطین کو موقع مل جاتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے، بہت زیادہ غلاظت والی جگہ میں رہتا ہے، طہارت نہیں کرتا، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے حیض و نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی، لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس طرح جادوگروں کے مختلف طریقے ہیں کہ بکرے کی سری ملتی ہے اور اس طرح خوب خواب آتے ہیں، عجیب و غریب خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ آپ کو خواب میں چھپکلی یا موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ علامات ہیں، ضروری نہیں کالا جادو ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ یہ کالا جادو ہو کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا پتہ ہی نہ ہو، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتہ ہے، یہ بھی کالا جادو کی علامت ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ کام بھولنا اور آپ کی کارکردگی کا کم ہو جانا، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑ ہو جائیں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کو لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے، اور آپ کو بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کے خواب میں بھی ضرورت سے زیادہ گندگی نظر آئے، یہ ساری علامات کالے جادو کی ہیں۔ لیکن ان سب علامات کے اکٹھے ظاہر ہونا ضروری نہیں کہ ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں، بس اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔